Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Today we will discuss about drought, what is drought and what are different type of drought and what are the impact of drought on plants and society. So drought is a condition, it is a dry condition when water quantity is not sufficient to fulfill the requirement. तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां वाटर क्वांटिटी इज नॉट सफिशिएंट। तो जो प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए या ह्यूमन बीइंग की या कोई दूसरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वाटर इज नॉट सफिशिएंट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट। तो ड्रॉट इज अ ड्राई पीरियड वी कैन से, and it is different from aridity. There is a difference between aridity and drought. You can watch this lecture, it is already upload and you can go through playlist, रेनफेड एग्रीकल्चर प्लेलिस्ट में जाइए, इसमें लेक्चर्स हैं एरिडिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरिडिटी एंड ड्रॉट। एरिडिटी इज ए डिग्री ऑफ ड्राइनेस विच कैरेक्टराइज द क्लाइमेट। तो एरिडिटी का जो ऑब्जेक्टिव है टू कैरेक्टराइज द क्लाइमेट, बट ड्रॉट इज ए dry condition when moisture in soil or reservoir is not sufficient to fulfill the requirement. So drought is a temporary in nature and it depends upon the rainfall characteristics, its quantity and its behavior. So this drought is very important, and in our country most of the agriculture is dryland agriculture, depends on rainfall condition. So drought is very common in arid and semi-arid condition. So in this lecture we'll discuss the different type of drought. So there are generally 4 type of drought when we talk about it. So first one is meteorological drought. Meteorological drought, and it is related with the amount of rainfall received. Whether amount is deficient in a particular year, then that condition is termed as meteorological drought. So it is related with the meteorological condition, means rainfall quantity. को rainfall की quantity अगर एक particular level से कम होती है, then it is said to be meteorological drought. So India Meteorological Department described this meteorological drought कि किसको हम meteorological drought कहेंगे. First of all, a long average of rainfall is taken for a region or a country. For example, in our country, in India, this long average is 1194 mm. So this is the average annual rainfall in our country. तो मेट्रोलॉजिकल डॉट को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा रेनफॉल कितना है और कितने परसेंट कम होने पे वी कैन क्लासीफाई इट एज ए मेट्रोलॉजिकल ड्राट. देन दिस इज इन होल ईयर 1st January to 31st December. And most of the rainfall in our country is by southwest monsoon, that is from June to September, and 73%, 74 or 73 or up to 75% rainfall is received in monsoon season, that is June to September, and it is about 88 mm. So 88 mm taken as a reference by IMD, India मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 88 mm जो रेन सेंटीमीटर, इट इज़ 880 मिलीमीटर हो जाएगा, ये 88 तो सेंटीमीटर होगा. देन 880 मिलीमीटर रेनफॉल को समर रेन, जिसको हम मानसून रेन है, उसको माना है कि इतना अपनी कंट्री में होता है. अगर इससे 25% रेनफॉल कम होती है, इफ इट इज, देन इट इज कंसिडर्ड अप टू द नॉर्मल रेनफॉल. इट इज नॉट कंसिडर्ड एज deficient. If rainfall is more than 25%, then it is considered as deficient and it is said to be meteorological drought. So it means up to the इसका हम 75% ले लें तो तब तक उसको ड्रॉट की कंडीशन नहीं मानेंगे हम, और इसका अगर 26 to 50% डेफिशिएंट होता है, deficient of this 880 mm अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें या इस पूरे का हम लें तो ये आएगा मॉडरेट ड्रॉट.
and if it is more than 50%, then it is severe drought. So this is the definition given by India Meteorological Department what is drought. तो किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर 25% एवरेज रेनफॉल कम होता है अप टू द 25%, तो उसको ड्रॉट नहीं माना जाएगा, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट में कंसीडर्ड नहीं होगा. इफ इट इज मोर देन 25%, देन इट इज कंसीडर्ड अंडर ड्रॉट. मोर देन 25%. If it is limit between 26 to 50, then it is said to be moderate drought, and more than 50%, then it is considered as severe drought. तो किसी भी लोकेलिटी के लिए हमको वहाँ का लॉन्ग एवरेज देखना पड़ेगा कितना है, और फिर उस परसेंटेज से हम कंसीडर कर सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट सीवियर है या मॉडरेट है. बट फॉर ए कंट्री होल, एज ए होल, कि पूरी कंट्री में ड्रॉट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हम कंट्री के लिए हम पूरा कंसीडर करें, एक पूरा एरिया माने पूरी कंट्री को कि इंडिया में इस साल ड्रॉट ईयर था या नहीं था, या कितने साल पहले ड्रॉट ईयर था, किस ईयर को हम ड्रॉट ईयर मानेंगे, देन दे आर टू पैरामीटर्स टू डिक्लेयर कंट्री पर्टिकुलर ईयर एज ए ड्रॉट ईयर फॉर कंट्री, फॉर होल कंट्री. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, पूरी कंट्री के लिए हम ड्रॉट कम मानेंगे, देन ये पैरामीटर फिर पूरी कंट्री के लिए फॉलो नहीं होता. एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये फॉलो होता है कि लॉन्ग टर्म एवरेज क्या है. ये तो मैंने इसका एग्जांपल लिया है उस लोकेलिटी का, उस डिस्ट्रिक्ट का, और वहां अगर इससे डेफिशिएंसी हो रही है तो वो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है. लेकिन पूरी कंट्री में अगर हम पूरी कंट्री का अगर हमको कंसिडर करना है तो दो पैरामीटर है. नंबर एक, रेनफॉल शुड बी मोर देन 10% डेफिशिएंट. जो रेनफॉल है इसका, किसका, इस 880 mm का, पूरी कंट्री के लिए चूंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए हम 880 mm लेंगे. अगर हम इसको बात कर रहे हैं तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए अलग अलग होगा. ये वैल्यू हर एरिया के लिए अलग अलग होगी, लेकिन कंट्री के लिए ये 880 mm कंसीडर की गई है. तो जो वहां रेनफॉल 10% से ज्यादा होना चाहिए, डेफिशिएंट होना चाहिए. दूसरा, इट शुड बी जो एरिया मोर देन 20% एरिया ऑफ कंट्री शुड हैव मोर देन 10% डेफिशिएंट रेनफॉल. अगर कंट्री में 20% एरिया में रेनफॉल की डेफिशिएंसी 10% से ज्यादा है, देन दैट पर्टिकुलर ईयर इज कंसीडर्ड एज ड्रॉट ईयर. तो ये आपको बात समझनी जरूरी है कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हम तब कहेंगे जब किसी का हम लॉन्ग एवरेज लें, लॉन्ग एवरेज रेनफॉल हम लें, और उसमें अगर 25% से ज़्यादा है तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है, और अगर 26 to 50% है तो वो मॉडरेट ड्रॉट की कंडीशन में आएगा, और मोर देन 50% है देन सीवियर ड्रॉट. तो ये एक पर्टिकुलर हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट का निकाल सकते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट का एवरेज रेनफॉल कितना है. पर्टिकुलर सिटी का हम देख सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी का हमें देखना है कि ये ड्रॉट ईयर में आएगा या नहीं आएगा, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है या नहीं है, तो वहाँ सिटी का हम एवरेज रेनफॉल देखें, लॉन्ग टाइम का जो एवरेज है, और उसका हम देख लें डेफिशिएंसी इतनी हो रही है नहीं हो रही है. लेकिन अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री के लिए मोर देन 10% डेफिशिएंसी होनी चाहिए रेनफॉल में, और उसके लिए 880 mm कंसीडर किया गया है. इसका 10% से कम अगर रेनफॉल हो रही है, नंबर वन वो होना चाहिए. इसको एवरेज लेकर के इस एवरेज का 10% से ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है रेनफॉल में, नंबर एक. नंबर टू, और 20% एरिया कंट्री का जो है, पूरी कंट्री का जो अपना एरिया है वो अफेक्ट हो रहा है, देन दैट इज कंसिडर्ड एज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट और ड्रॉट ईयर. So meteorological drought is related with the less amount of rainfall. So this was about the meteorological drought and drought year, and it is classified by IMD. Another advancement in drought, अगर हम सीक्वेंस में देखें, meteorological drought के बाद जो कंडीशन आती है that is agricultural drought. In case of agricultural drought, here crop growth is concerned. The soil moisture and rainfall. Soil moisture plus rainfall are not sufficient to fulfill the plant water requirement. That condition is considered as agricultural drought. जब सॉइल का मॉइस्चर और रेनफॉल की अमाउंट इतनी नहीं होती कि प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके उसकी एक अच्छी ग्रोथ के लिए, देन इट इज कंसिडर्ड एज agriculture drought. It is not linked with the amount. In case of meteorological drought, amount
a quantification is given, 26 to 50%, more than 50%, and national average 880 mm, more than 10% and 20% area affected. But in case of agricultural drought, there is no quantification, there is no limit. Simple term, when soil moisture plus rainfall quantity is not sufficient to fulfill the plant water requirement, then this condition is known as agricultural drought. And this condition vary from crop to crop. For example, in rice, in case of rice, 600 mm water is through soil moisture plus rainfall, and this amount is not sufficient to fulfill the water requirement of rice, then this is agricultural drought for rice. But this 600 mm is sufficient for maize, pearl millet and sorghum. Then for this crop, this quantity is sufficient. Then for this crop, there is no agricultural drought, but for rice, it is drought. It means it depends upon the nature of the crop. Number one. Number two, soil characteristics. If soil can hold more moisture, then there is less chances of agricultural drought. So there is no quantification. It is just the case of water moisture available एंड प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट. तो यहां एग्रीकल्चर ड्रॉट को समझना है कि जब सॉइल में मॉइस्चर और रेनफॉल इतनी नहीं हो पा रही कि उसकी प्लांट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, तब हम उसको एग्रीकल्चर ड्रॉट कहेंगे. अब राइस के लिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो 600 mm उसकी वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही, तो उस केस में तो राइस के लिए ड्रॉट है. लेकिन मीट, पर्ल मिलेट और सोरघम के लिए वाटर बहुत सफिशियंट है, तो उसके लिए ड्रॉट नहीं है. तो दिस एग्रीकल्चर ड्रॉट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर. नंबर वन इज टाइप ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन, कि कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, नंबर एक. नंबर टू, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि रेनफॉल को बहुत सॉइल ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर लेती हैं, तो वो ज़्यादा देर तक सप्लाई कर सकती हैं. कुछ सॉइल में रन ऑफ ज़्यादा होता है, जैसे क्लेई सॉइल है, वर्टी सॉइल है, तो मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाएंगी. दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राई पीरियड, ड्राई स्पेल कितना आ रहा है. देन इरेटिक बिहेवियर ऑफ मानसून, कि मानसून अगर लेट हो गया या अर्ली विड्रॉ हो गया, तो वहां चांसेस एग्रीकल्चर ड्रॉट के होते हैं. सो दिस एग्रीकल्चर ड्रॉट इज रिलेटेड विद द इरेटिक बिहेवियर ऑफ मानसून, क्रॉप एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ड्राई स्पेल की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है तो एग्रीकल्चर ड्रॉट का चांसेस ज्यादा है. तो एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, देयर आर मोर चांसेस ऑफ एग्रीकल्चर ड्रॉट बिकॉज ऑफ ड्राई स्पेल. ड्राई पीरियड हो जाता है, शुरू में तो रेनफॉल अच्छी हो जाती है, बीच में रेनफॉल नहीं होती, फिर पीछे रेनफॉल हो जाती है लेट सीजन में. कभी कभी क्या मानसून बहुत लेट आता है तो एग्रीकल्चर ड्रॉट हो जाता है, ड्राई पीरियड हो जाता है, अर्ली पीरियड में क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती. सो एग्रीकल्चर ड्रॉट इज रिलेटिव टर्म. एक क्रॉप के लिए तो एग्रीकल्चर ड्रॉट हो सकता है, लेकिन दूसरी क्रॉप के लिए नहीं हो सकता. तो जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उनके लिए एग्रीकल्चर ड्रॉट हो सकता है, लेकिन कम के लिए नहीं हो सकता. लेकिन मान लीजिए मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो गई, 300 mm हो गई, एंड 300 mm क्वांटिटी इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्रॉप. तो इस केस में एग्रीकल्चर ड्रॉट इज फॉर ऑल क्रॉप. तो पहले कंडीशन क्या होती है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है. क्यों होता है? इनसफिशिएंट रेनफॉल की वजह से होगा, क्योंकि डेफिशिएंसी हो रही है, मोर देन 25% रेनफॉल कम हो रहा है. जब रेनफॉल कम हो जाएगा तो देखिए यहां जब रेनफॉल कम हो जाएगा तो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, वाटर रिक्वायरमेंट तो उतनी है लेकिन फुलफिल नहीं हो पाएगी उसकी डिमांड प्लांट की. तो पहले क्या होगा, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा. मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट के बाद जो कंडीशन आएगी, दैट कंडीशन एग्जिस्ट एग्रीकल्चरल ड्रॉट. सो दिस इज द सीक्वेंस. कि पहले किसी एग्जामिनेशन पूछा सकता है कि ड्रॉट की सीक्वेंस बताइए, तो सबसे पहले होगा मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल, डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल. और जब डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल होगी देन प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड, देन एग्रीकल्चरल ड्रॉट. तो ये ड्रॉट इसके बाद आएगा. देन थर्ड वन इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट. इन केस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, देखिए हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट इज रिलेटेड विद द वाटर रिजर्वेयर. वाटर किस में प्रेजेंट है, लैक्स, रिवर्स, पॉन्ड. व्हेन वाटर is deficient in water reservoir, then it is known as hydrological drought. Water is present in water bodies, surface water bodies and subsurface soil, and most of the water is present on surface, lakes, river, pond. And when there is a insufficient rainfall, तो जो स्नोफॉल से या रेनफॉल से जो वाटर रहता है
or if this precipitation is less, either rainfall or snowfall, then water present in water bodies, lake, pond, river, जो भी है हमारी जहां भी वाटर कलेक्ट जो एरिया है, then water start to decline and water reaches below a threshold level, critical level, then it is said to be hydrological drought. तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या है? जब नदियों में, झील में, झरनों में, तालाब में पानी एक क्रिटिकल लेवल से नीचे हो जाए, एक लेवल थ्रेशोल्ड से नीचे हो जाए, कम हो जाए, दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट. तो एग्रीकल्चर ड्रॉट के बाद जो सीक्वेंस आती है दैट इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट. सो फर्स्ट वन इज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, देन एग्रीकल्चर ड्रॉट. और पानी बहुत कम होने लगा, नदियों में कम हो गया, पॉन्ड में कम हो गया, पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट. तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट किससे रिलेटेड है? amount of water present in water bodies, water reservoir. Then fourth one is related with the socio-economic drought. Socio-economic drought. This socio-economic drought is related with the society. अब देखिए, रिवर में पानी कम हो गया, लेक में पानी कम हो गया, तो ड्रिंकिंग वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इंडस्ट्री के लिए पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जहां बिजली बनाई जा रही है पानी से, वहां जो रिजर्व में पानी नहीं रहेगा, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, देन सोसाइटी इज अफेक्टेड, इंडस्ट्री इज अफेक्टेड, एंड दैट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सो लो दैट द वर्क, सोसाइटी वर्क और ड्रिंकिंग वाटर इज अफेक्टेड, इंडस्ट्री इज अफेक्टेड, इलेक्ट्रिसिटी इज अफेक्टेड, then it is known as socio-economic drought. So this is the fourth condition of drought. So first meteorological, agricultural, hydrological and socio-economic drought. तो socio-economic drought वो होता है जब पानी इतना कम हो गया रिजर्वेयर में कि पीने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है, इंडस्ट्री को रन करने के लिए वाटर नहीं मिल पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर नहीं हो पा रहा है, रिजर्वेयर सूख गए हैं, नदियां सूख गई हैं, तालाब सूख गए हैं, एनिमल को नहीं मिल पा रहा है, दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट. ये 4 तरह के ड्रॉट हैं और इसमें जो देखिए जो आईएमडी का है बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर से मैं आपको बता दूं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? जब इट इज मोर देन 25% डेफिशिएंसी. इसको फिर समझ लिया, मोर देन 25% डेफिशिएंसी ऑफ लॉन्ग एवरेज ऑफ रेनफॉल. लॉन्ग एवरेज ऑफ रेनफॉल, किसी लोकेलिटी का जो रेनफॉल है उससे 25% ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई, तब उसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहेंगे. फॉर एग्जांपल किसी सिटी के लिए मान लीजिए 1000 mm रेनफॉल है, एवरेज एनुअल रेनफॉल है, तो ये लॉन्ग टर्म पे निकाले जाते हैं एवरेज रेनफॉल. और मान लीजिए इसका 25% कितना हुआ? 250. अगर मान लीजिए वहां 700 mm रेनफॉल हो रहा है, क्योंकि 25% में 250 mm आएगा, तो इट इज मोर देन 25%, it is reduction of 30%, then that city or that place is considered under meteorological drought. तो ये समझना आपको जरूरी है कि meteorological drought के लिए क्वांटिफिकेशन फिक्स है, more than 25% of long average. अपनी कंट्री में जो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग बताया था कि जो मानसून है, इंडियन मानसून है, टोटल जो कंट्री का है वो तो 1194 mm है, लेकिन जो मानसून का है 880 mm है. अगर कंट्री का हमें देखना है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, तो दैट should be more than 10% of 880 mm. इस बात को ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में. दूसरा, more than 20% एरिया should have more than 10% डेफिशिएंसी. 20% एरिया से ज्यादा एरिया में 10% से ज्यादा डेफिशिएंसी हो रही है इस लॉन्ग एवरेज की, तब हम उसको ड्रॉट ईयर कह सकते हैं पूरी कंट्री के लिए. अदरवाइज हम प्लेस टू प्लेस के लिए ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करते हैं. एग्रीकल्चर ड्रॉट को समझ लीजिए, जब सॉइल मॉइस्चर इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल दी प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट, देन एग्रीकल्चर ड्रॉट. एंड इट वेरी क्रॉप टू क्रॉप, इट इज रिलेटिव, फिक्स नहीं है, इसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है. हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट व्हेन इन वाटर बॉडीज, जो भी वाटर बॉडी है, नदी है, तालाब है, नाले हैं, जो भी है, जहां पानी कलेक्ट रहता है, वहां पे अगर पॉन्ड्स में वाटर का लेवल डाउन हो रहा है, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट. सब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रेनफॉल कम हो रही है. और पानी इतना कम हो जाए, वाटर अवेलेबिलिटी इज सो रिड्यूस्ड दैट डेली वर्क अफेक्टेड, ह्यूमन लाइफ इज अफेक्टेड, इंडस्ट्रियल वर्क इज अफेक्टेड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज अफेक्टेड. तो वाटर से रिलेटेड जितने वर्क अफेक्ट हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट. सो दिस देयर आर 4 टाइप ऑफ ड्रॉट.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 तरह के ड्रॉट। और 2 ड्रॉट और होते हैं जो इसकी कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन हमको पता होने चाहिए व्हाट आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रॉट जो इन कैटेगरी में नहीं है। एंड क्योंकि ये जो है दीज ड्रॉट्स आर रिलेटेड विद द मेनली विद द मानसून रेन्स इन सीक्वेंस। जो अदर ड्रॉट है दैट इज इसको फिर समझिए, ये ड्रॉट इन 4 कैटेगरी में नहीं है, अलग उसको हम कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। दिस इज रिलेटेड विद द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट। That this physiological drought is when soil water is saline. ये plant है, plant and water is saline. Then osmotic potential is very negative or very low. Osmotic potential is very low. Salts present हैं इसके अंदर, saline water है. Then roots cannot absorb the water. The water is present in soil, but because of negative osmotic potential, जितना salt होगा सैलिनिटी बढ़ेगी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव साइड में जाएगा, देन प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस वाटर एंड देन वाटर डिफिशियंसी अकर इन प्लांट। दिस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। तो ऐसी कंडीशन में जहां सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, प्लांट रूट कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर, सैलाइन वाटर को प्लांट रूट बहुत ज्यादा सैलाइन वाटर को कैन नॉट एब्जॉर्ब। वाटर इज प्रेजेंट इन सॉइल बट नॉट अवेलेबल टू प्लांट, देन देयर इज वाटर डेफिशिएंसी सिम्टम। इट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। Second one is ecological drought. In case of ecological drought, there is an ecosystem. We know in ecosystem there is an established ecosystem, forest ecosystem, water ecosystem. There are many species are interrelated. When there is a moisture deficiency or rainfall deficiency, that one species is adversely affected. Then function of this ecosystem are adversely changed. Then it is known as ecological drought. किसी इकोसिस्टम में कोई स्पीसीज एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, कोई स्पीसीज बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि देखिए इकोसिस्टम में कई स्पीसीज आपस में रिलेटेड होती हैं जो हेल्प करती हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इकोसिस्टम के, चाहे वाटर का इकोसिस्टम है, चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, चाहे फील्ड का इकोसिस्टम है। तो अगर रेनफॉल इतना कम है, मॉइस्चर डिफिशियंसी इतनी हो रही है कि कोई एक स्पीसीज बिल्कुल खत्म हो जा रही है, तो डेफिनेटली इकोसिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड। जब ये एडवर्स इफेक्ट ही क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल ड्रॉट। अगर रेनफॉल ठीक ठाक है और कोई स्पीसीज एडवर्सली अफेक्ट नहीं हो रही है, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इकोलॉजिकल ड्रॉट। सो इन केस ऑफ इकोलॉजिकल ड्रॉट, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स आर एडवर्सली अफेक्टेड ह्यूज एट ह्यूज लेवल। कोई इकोसिस्टम, जैसे कि बहुत इकोसिस्टम के फंक्शंस होते हैं, कोई एक फंक्शन बहुत एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, या कोई एक स्पीसीज बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाए, कोई एक वेजिटेशन एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, कोई एक एनिमल की स्पीसीज, या कोई एक कोई भी एक स्पीसीज बायोटा खत्म हो जाता है, तो उससे इकोसिस्टम एडवर्सली अफेक्ट होता है। दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल ड्रॉट। इट इज रिलेटेड विद द इकोसिस्टम। तो ये मैंने 2 अलग आपको बताए हैं। जनरली देयर आर 4 टाइप ऑफ drought: meteorological drought, agricultural drought, and last one is hydrological drought, and last one is socio-economic drought. तो सबसे लास्ट इम्पैक्ट जो आता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर आता है, जब पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। तो ये मैंने आपको ड्रॉट बताया जो डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।